ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਂ 7 o'clock ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਡੇਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ 9 ਬਿਲਕੁਲ, ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਰਿਹਾ ਬਿਲकुल। मतलब यूजुअल क्लास नहीं ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 90% ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 9 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ 9 ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਾ। ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਾਰਕਰ ਕਿਤੇ ਹੈ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਂ। ਆਪਾਂ ਨਾ क्लास में रिकॉर्ड कर दिया करा हाँ, 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ 7:10 ਵਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਨਾ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। तो 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਐਂਡ ਆਲ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਪੇਪਰ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਆਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਚਲੋ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੈਪਟਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 30 ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ, 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਹੀ ਲਗਾਇਓ ਪਲੀਜ਼। 9 ਵਜੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਰਨ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸਲੋਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ। ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 1 ਤੋਂ 3 ਨਹੀਂ, 4 ਤੋਂ 6 ਵੀ ਨਹੀਂ, 6 ਤੋਂ 7, 6 ਤੋਂ 7 ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ 3 ਤੋਂ 4 ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 7 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 7 ਤੋਂ 8 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਤੋਂ 9 ਵੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰ ਨਿਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ हाँ मैं ਤੁਹਾਡੇ वही ਤੋਂ बस मैं ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ अपने ਆ। को ना यही सोचा, ਹਾਂਜੀ हाँ फ्लिप कर देंगे यार, ਹਾਂਜੀ। ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਰ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੰਬੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸਰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ? ਸਿਮਰਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਮ ਆ। ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਮੈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੈਡਰ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੈਡਰ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਪਵੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁਣ ਕੀ हाँ ਰਹੇਗੀ, श्योर श्योर श्योर, ਪਰਮਾਨੈਂਟ मैं 9 ना ਵਜੇ ਰਹੇ। आज क्लास होगी ना मैं फ्लिप करके दिखाऊंगा, जेकर फ्लिप हो गया फिर तभी बेस्ट है ना, नहीं तो फिर कोई गल, फिर आप मतलब कोई ना कोई हल कर देंगे, परवाह ना करो। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग है ना यार, मेरे को अपने वाले नोट्स मिल गए थे, ठीक है, पुराने, तो मैं कहा भी चलो इनसे कराएं, ठीक है, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे बनाए हैं। मतलब इसका
एक ये चीज जरूर है कि आपको नो डाउट जो आगे पीछे मैं करवाता हूँ तो सेम से ही कराता हूँ, कोई फर्क नहीं होता, मतलब उतने ही बने होते हैं। बट ये मतलब खुद के बने हुए हैं और काफी अच्छे हैं। ठीक है, मतलब क्लास में बोल के लिखवाए हुए हैं ये। तो इनसे काइंडली यानी ग्रुप में भी सेंड कर दी, ये जो पीडीएफ है थोड़ी सी है अभी स्लो स्लो, आगे आगे जैसे जैसे होता जाएगा भेजा जाऊंगा। बहुत अच्छे बने। केमिकल बॉन्डिंग, वाई डू एटम्स कंबाइन? पहली बात, एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं? द टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट। बिल्कुल, मेरी बात सुनो, जैसे अपने पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 1 है। कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s1। तो पापा को पता है पहले वाले में दो पूरे करने होते हैं, तो या तो ये लूज करेगा या ये गेन करेगा। तो इसीलिए H1 माइनस भी होता है, H1 प्लस भी होता है ना। तो ये दो तरह की हमारे पास एच की कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है ना, H1 प्लस भी है, 1 माइनस भी है। तो हमारे पास बेसिकली अपन अगर और बात करें लिथियम की, इसका एटॉमिक नंबर 3, 1s2 2s1, आउटर मोस्ट में एक है। सर ये एक लूज करेगा ताकि इसके अंदर दो पूरे हो जाए। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पहले वाले में दो, दूसरे वाले में आठ, आठ एंड सो ऑन आगे जाके पूरी करना चाहेंगे, है ना। So the tendency to or urge of atom various elements to attain stable configuration of 8 electrons। हाँ, 8 पूरे करने के लिए, यानी कि ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, ठीक है, एटम्स कंबाइन करते हैं। यही मेन कारण है केमिकल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इससे क्या हो जाता है सर? एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, हमेशा अगर हीलियम की बात करूँ ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, गेटिंग में पॉइंट और नॉट, ये पॉइंट है। अगला, व्हेन एनी एटम अटेन्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन इट्स एनर्जी गेट लोअर। बिल्कुल सिंपल बात है, इसकी एनर्जी कम होगी। क्लियर है पॉइंट? तो किरण अपनी को क्लास तो नहीं है पुत्री, ये ऑनलाइन नहीं अपने नहीं पर कहते हैं अभी नहीं उसकी सर। क्लास है, हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। हाँ नो नो हो तो सर। कोई बात नहीं, अब तो चलो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, बता देना। क्योंकि आपको तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, क्योंकि ये है भी बड़ा जरूरी है। ओके, हाँ जी, लीविस डॉट स्ट्रक्चर्स। लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? बिल्कुल नया चैप्टर है सबके लिए, वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना था, बट ये इक्विलिब्रियम थोड़ा बच्चों को टिपिकल लगता है, तो सॉरी केमिकल बॉन्डिंग टिपिकल लगता है, तो मैं क्या इसको स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लिविस डॉट स्ट्रक्चर किसी के भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो करने को लिविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s 2p 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 1 शेयर कर दिए। नियॉन 10 है आउटर मोस्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी आउटर मोस्ट में 8 है ना, 2 8। लिथियम आउटर मोस्ट में 1 है, 2 1। तो ऐसे ऐसे शो होगा। ठीक है, नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन अपने पास जैसे इसके आउटर मोस्ट में 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे होगा ना। तो ये दो बॉन्ड अपने पास बेसिकली जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये दो अपने पास बेसिकली कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक है ना, तो ये दो बेसिकली लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स। वैसे तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आगे जाके लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट आएगा, बट आपने ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी नोट नहीं करनी है, नोट्स में इसको क्रॉस कर देना। मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर होते क्या है? मेरी बात सुनो, मैंने सिंपल बात कही कि दो एटम्स मान लो कंबाइन करें, अगर दो कंबाइन करेंगे तो दो कंबाइन में जो सर खाली बच गए वो लोन पेयर होते हैं, जो कंबाइन कर गए वो बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत लिखा है, जिसने भी लिखा है गलत लिखा है, मैंने भी लिखवाया तो गलत लिखवाया है। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सा अगर समझ लेते हैं, ठीक है, तो इसको अगर मैं ध्यान से अगर देखूंगा कि सर जैसे H2 है ना, ऑक्सीजन सेंटर में रहेगा, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक हाइड्रोजन इधर कंबाइन, एक हाइड्रोजन इधर कंबाइन, ये ऑक्सीजन के 8 पूरे, हाइड्रोजन के दो दो पूरे। सर ये जो प्रेजेंट है ना 1 नंबर 2 नंबर, ये लोन पेयर है, और ये जो कंबाइन कर गए जहाँ पे लाइनें बनाई है मैंने, ये सर जी बॉन्ड पेयर।
ये बॉन्ड पेयर है, वो लोन पेयर। समझे बात? हाँ, जो कंबाइन करे हैं, जिन्होंने बॉन्डिंग क्रिएट करी है वो बॉन्ड पेयर है। जिन्होंने कंबाइनिंग नहीं करी, कल्ले रह गए जी, वो हमारे पास बेसिकली क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, है ना? ठीक है, क्लियर? Yeah. नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में दो हैं, 12 एटॉमिक नंबर। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 दो हैं, दो बना दिए। एल्यूमिनियम के 3, सिलिकॉन के 4, सिलिकॉन 1 2 3 4, है ना? फॉस्फोरस के 5, 1 2 3 4 5 बन जाएंगे। ठीक है, वैसे ही जितने भी अपने पास बेसिकली 20 एलिमेंट्स हैं, सबके आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन देखो बेसिकली शो कर रखे हैं। सबके आउटर मोस्ट वाले, आप भी ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे, जो ना समझ आए मेरे से पूछेंगे जरूर। ठीक है, सर 20 तक की बनते हैं लोन पेयर की, उसके बाद भी? ना ना पुत्री, लोन फिर जितने मर्जी। ओके। ठीक है, अपने को लिविंग स्ट्रक्चर जितनी मर्जी, मेरी गल सुनो, स्कैंडियम, है ना? स्कैंडियम की कंफिगरेशन की होंगी है, आर्गन 18 3d स्कैंडियम 29। 4s1 3d, सॉरी 4s2 3d1, है ना? आर्गन 18 4s2 3d1। तो बेसिकली हमारे पास 20 और एक 21 है ना, आउटर मोस्ट देखो 4 वाला 2 है, 2 ही हो जाएंगे मान लो। ठीक है, जितने मर्जी बनाई जाओ। बाकी ये है कि ज्यादातर आते हैं 20 तक है, ज्यादा इसलिए आते हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन है आउटर मोस्ट में 8 है, बना दी, सॉरी 6 है, बना दी। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, सर 2 गेन कर लिए हैं जी, 2 और बनाओ ना, तो चाय पी ली, मैं चाय पी ली। ठीक है, 2 गेन कर लिए हैं तो 2 नेगेटिव, है ना? मैग्नीशियम की बात करें सर, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। 12 मतलब 2 8 2, 2 पॉजिटिव, 2 लूज कर दिए हैं, ये वाला उड़ गया, आउटर मोस्ट में 8 रह गए हैं, तो 8 बना दी। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 13, 2 8 3, 3 पॉजिटिव है, 3 लूज कर दी, आउटर मोस्ट में 8 रह गई, 8 बना दी, काम खत्म। हाँ जी, किरण समझ आया? यस सर। बड़े सिंपल सिंपल चीजें। सिग्निफिकेंस ऑफ लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना? मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस भी करे, तो आपको वैसे जब कैडर आएगा तो तब आपको कंप्लीट बता दूंगा भी कैसे कैसे। बट फिर भी आपको चाहिए हो तो बता दूंगा भी किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन की वेटेज कैसे कैसे बनती है। हर एक पिछले जितने पेपर हुए हैं, 2016 18 20 और 21 दो जो भी थे, है ना? 3504 67 41 61 पोस्ट थी, जितने भी पोस्ट हुई है सारे के एनालिसिस करनी, टोटल 5 पेपर हुए। ओके, ओके सर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ आया, लिविंग स्ट्रक्चर समझ आ गई। यस सर। बड़ी सिंपल सिंपल चीज है। सिग्निफिकेंस ऑफ लिविंग डॉट स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस, इसका फायदा क्या है सर? अगर ये पता हो गए, तो मेरी बात सुनो, किसी की लिविंग डॉट स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आगे। दूसरी बात, सर वैलेंसी निकाल सकते हैं, सबको पता है आउटर मोस्ट में 4 से कम हुए तो सर वही उसकी वैलेंसी है, 4 से ज्यादा हुए तो 8 में से माइनस कर दो। कैसे? जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 हैं, तो 8 में से माइनस कर दो, वैलेंसी आ गई 1, 1 माइनस होती चलो। ठीक है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 है, तो 1 ही उसकी वैलेंसी है। सर चार्ज निकाल सकते हैं, कैसे? मान लो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 1 दिखा रखा है, ठीक है, 1 दिखा रखे, अपन को पता है मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 होते हैं, मतलब इसने लूज कर रहा है, मतलब ये मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और चार्ज, ये 3 चीजें अपन को डेविस डॉट स्ट्रक्चर बताती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब कहानी इसके अंदर लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। बॉन्ड, सर बॉन्ड क्या है? बेसिकली मेरी बात सुन, अपन कहते हैं भाई अपने दोनों के बीच बॉन्ड साइन हो गया। बॉन्ड एक अपने पास बेसिकली कहते हैं भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज जस्ट द अट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए स्कीमें लगाई गई है जी। ठीक है, अपने आउटर मोस्ट में 8 पूरे करने के लिए स्कीम लगाइए कि भाई कुछ तो कर लिया जाए, है ना?
ये गड़बड़ है बाबा, है ना। बॉन्ड कैसे कैसे पूरे हो सकते हैं? सर तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, तीन तरह के बॉन्ड होंगे। कौन कौन से सर? आयनिक, हाँ कोवलेंट हाँ जी। और कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, हाँ जी, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट। बड़ी सूखी है ये यूनिट। बात सुनिए, यहाँ पे अब मैं आपकी एग्जांपल लेता हूँ। आप तीनों बेस्ट फ्रेंड्स है ना। पायल मैम की अचानक से, मैम क्लास का क्या हो गया अभी? पहले तो वो लगा रहे थे बिल्कुल, क्या कुछ अभी वैसे तो काम वगैरह ज्यादा पड़ गया? पर जी सर शायद ज्यादा मतलब टाइमिंग हो गई है, और क्लासेस ही ता करके बर्डन ज्यादा हो गया। वर्कलोड बढ़ गया ना? हाँ तब जी। कोई बात नहीं। तो तीन तरह के अपने बॉन्ड पड़े। मान लो अभी यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, किरण और पायल, है ना। इनमें बॉन्डिंग बनानी है, कैसे बनानी? सरबजीत रहेगी वैसे तो गुस्सा करेगी भी, मैं को परा कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सरबजीत आ जाएगी। किरण और पायल हैं, तो मान लो अभी मूवी देखने जाना है। ठीक है, सारे कंसेप्ट सारे बॉन्ड हो जाएंगे। मूवी देखने जाना है, और मूवी की टिकट है जी 150 रुपये, 150। उस टाइम पे पायल किरण मैम आपका ना ही गूगल पे चल रहा, ना ही आपका कुछ फोन पे वगैरह, फोन वगैरह प्रॉपर चल ही नहीं रहा, और कैश भी नहीं। तो पायल मैम कहते हैं कोई बात नहीं, सारी की सारी मूवी मैं दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं, सारी पेमेंट मैं कर दूंगा। तो वो आईनी की बाउंड होता है। इसमें एक पर्सन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दूसरे को लूज कर दे, एक पर्सन इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दूसरा गेन कर ले। आपके पास पैसे नहीं है कोई ना, मैं मूवी दिखा दूंगी, मैं पैसे भर दूंगी। तो एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा कि भाई तू रख ले, कोई चक्कर नहीं है, तू गेन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कोवलेंट। कोवलेंट में क्या होता है भी? अगर पायल मैम है और किरण है ना, 150 The की टिकट है। sharing of electrons, हाँ जी। sharing pair of electrons हाँ, शेयरिंग होंगे ऑफ ਇਹਦੇ इलेक्ट्रॉन। ਚ। भैया 150 रुपए की टिकट है, तो ऐसा करिए भी, अब पैसे मेरे पास भी कम होते हैं आजकल, आपके पास भी कम है, ठीक है, तो 75 रुपये आप डालिए, 75 मैं डालूंगी। ठीक है, इंटरवल से पहले आप देखना, इंटरवल से बाद मैं देखूंगी। वो कोवेलेंट कंपाउंड, शेयरिंग। एक आईफोन लेना है, ठीक है, 50,000 का फोन लेना है, 25 आप डालिए, 25 मैं डालूंगा। पिछले में क्या था, सारे के सारे पैसे ही एक बंदे ने डाल दिए। पिछले वाले में एक ने लूज करा, दूसरे ने गेन करा, में शेयरिंग। ठीक है, क्लियर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सर इसको डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से भी हटके है। कैसे? मेरी बात सुन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या था, आयनिक बॉन्ड में उसको अगले बंदे को 150 रुपए की जरूरत थी, 150 दे दिए। बट आया वो मूवी देखने, आप आए खुद थे, ऑटो वगैरह का खर्चा आपने ही भरा। ठीक है, वहां पे जो मूवी के अपने पास कहते हैं चिप्स वगैरह हैं, वो आपने खुद खाए, उसके पैसे थे, हाँ बिल्कुल थोड़े बहुत थे, सिर्फ थोड़े से पैसों की जरूरत थी, उन्होंने लूज कर दिया, तो आप रख लो। कोवलेंट में 50-50। कोऑर्डिनेट में मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, डेटिव बॉन्ड है। ठीक है, सारे पैसे एक ही बंदा लगाएगा, A to Z। ठीक है, मेरे को वहां पे सारे का सारा बजट 500 का, 500 के 500 लगाओगे, इंक्लूडिंग पॉपकॉर्न ये वो सब कुछ। तो ध्यान समझेंगे, आयनिक बॉन्ड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंफ्यूजन होती है। आयनिक बॉन्ड में बेसिकली, जैसे एग्जांपल लेता हूँ Na और Cl की, Na इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Cl गेन कर लेता है। Cl के पास बकायदा 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, उसने क्या करा कि ठीक है 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक मांग लिया, अपने दो पूरे कर लिए। सर एक मांगा है, दो पूरे कर लिए, है ना, एक एक मांग लिया, एक खुद के पास था, दो पूरे कर लिए। कोवलेंट में जैसे H और HCl2,
है ना, पहले ने भी अपना आगे करा तो उसने अपना आगे करा, शेयरिंग से हो गया। कोऑर्डिनेट में कुछ एलिमेंट्स कहते हैं भाई, ऐसे बंदे होते हैं निहायत निकम्मे, जिनके पास कुछ नहीं है, कहते ना मेरे को पहला तो ना मेरे को दूजा, दो में ही तू इलेक्ट्रॉन देगा, तो दो इलेक्ट्रॉन दे, दो में ही तू दे, तो मैं फिर शेयरिंग करा। वो शेयरिंग, उस शेयरिंग को क्या बोलेंगे सर? वो शेयरिंग होती नहीं वैसे, बट दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विच इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। ठीक है, चैट बॉक्स में मेरे को शो हो रहा किरण, आप मेरे को बोल के बता दो, पता नहीं क्यों चैट बॉक्स को ना। सर क्लियर। क्लियर, ओके। हाँ जी, इसमें जूम ज्यादा है ना, ओवर जूम है तो। ठीक है, तो ये अपने पास सारा सेटअप हो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आई थिंक आपको हुआ क्लियर। नेक्स्ट आप जाएंगे, ये हो गया सारा, है ना। इसमें लिखा हुआ है एक मेटल और एक नॉन मेटल, बिल्कुल सिंपल, मैंने बोला है कि एक लूज करेगा एक गेन करेगा। मेटल सब लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है। ये देखो दोनों ही गेन वाले हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आगे आ जाएगा। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ऐसा बॉन्ड जिसमें एक बंदा लूज करेगा एक बंदा गेन करेगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि जब लूज करते हैं तो जब मान लो सोडियम ने लूज करे, उस पर चार्ज पॉजिटिव, Cl ने गेन करा, उस पर चार्ज नेगेटिव। सर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इनका जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। सर जब दोनों अट्रैक्ट करेंगे कोई ना कोई एनर्जी निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, दैट एनर्जी इज नॉन एज लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? लैटिस, LATTIC, लैटिस। प्रॉपर वो स्ट्रक्चर बनाने की एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, है ना। ये देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, क्लोरीन ने गेन करा, बॉन्ड बन गया आयनिक बॉन्ड, लैटिस एनर्जी आगे आएगी। Mg ने दो लूज करे, Cl ने दो गेन करे, MgCl2। फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। पहली बात, लो आयनाइजेशन एनर्जी, पढ़ा था कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो आयनाइजेशन होती है। जितनी कम आयनाइजेशन उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, उतनी ज्यादा आपके पास जल्दी बॉन्ड बन जाएगा। हाई इलेक्ट्रॉन गेन, पहले वाला इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी कर दे, दूसरा जो गेन करेगा फिर एनर्जी ज्यादा निकाले। ठीक है, जितनी ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन होता है कि एनर्जी लेने के बाद कितनी वो रिलीज करेगा, जितनी रिलीज ज्यादा करेगा उतना जल्दी आयन बन जाएगा। लैटिस एंथैल्पी मैंने बोला है कि जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंबाइन करेगा तो एनर्जी निकलती है, इसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। जितनी ज्यादा ये आएगी उतना स्ट्रॉन्गर कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन गेन ज्यादा, लैटिस भी ज्यादा। Lattice enthalpy, minimum amount of energy released when 1 mole of ionic compound is formed from its constituent ions। बिल्कुल, वो अपनी कहते हैं भी एक अपने अपने एटम से जब वो प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा, लैटिस एंथैल्पी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंबाइन करा, एनर्जी निकली लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है सर, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ये नेगेटिव होगी। हमेशा आपको बताया एक्सोथर्मिक नेगेटिव होती है, एंडोथर्मिक पॉजिटिव होती है, केमिस्ट्री मानती है। यस सर। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी, पहली बात साइज ऑफ कैटायन। आप खुद बताओ, अगर कैटायन छोटा होगा, है ना, जितना ज्यादा बेसिकली कैटायन छोटा होगा, एनायन छोटा होगा, वे दोनों की बात ही करते हैं, तो उतना ज्यादा छोटा उतना ज्यादा चार्ज होगा, उतने ज्यादा जल्दी कंबाइन होगी। क्योंकि जितनी चीज छोटी होती है ना, मेरी सिंपल बात सुन लो यार, आपके, मैं अगर वही बात कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा कैटायन छोटा या एनायन छोटा होगा, उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, उतना वो एस शेल, ये बेसिकली उसका उतना उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है। तो साइज छोटा, लैटिस एंथैल्पी ज्यादा, चार्ज जितना ज्यादा होगा फिर लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल पॉइंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, पहली बात फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट अपने घर में नमक पड़ा है NaCl, तो वो सॉलिड फॉर्म भी होता है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, नमक पड़ा पड़ा जितनी मर्जी गर्मी आ जाए नमक पिघलता नहीं है। हाँ, गुड़ पड़ा पड़ा पिघल जाता है, ये नहीं पिघलता। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी आपको पता है, पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, पोलर सॉल्वेंट जैसे नमक, है ना, घुलता है अपने पास वाटर में, वाटर पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, ये जो कार्बन कंपाउंड है वो नॉन पोलर होते हैं।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको पता है, नमक पड़ा पड़ा कुछ कंडक्शन नहीं कराएगा, बट जब पानी में डालोगे या मोल्टन स्टेट में होगा, पिघला होगा, तो बहुत जबरदस्त झटके देगा ना। थ्री इडियट्स आपने देखी हुई है। सॉल्ट वाटर इज द ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस सर। है ना। बड़ी बढ़िया कॉमेडी थी। नेक्स्ट, आयनिक रिएक्शन। सिंपल बात है कि जो अपने पास आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, जैसे कि तो जैसे NaCl प्लस के बी आर है, तो रिवर्स हो जाता है, NaBr KC अलग अलग हो जाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, ये अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी शो करेगा, है ना। क्लियर पॉइंट, क्लियर है। यस सर। ठीक है, एक बार इसको समराइज करते हैं, फिर दूसरी PPT में शो करता हूँ। ठीक है, पूरे के पूरे को समराइज करते हैं। हाँ जी, पहला केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा कि अपने पास कोई भी एटम, किरण आंसर दोगे सारे आप। सर ट्राई करूंगी। हाँ कोई बात नहीं, बेस्ट ट्राई करूँगा। ठीक है, तो मेरे को बताओ सबसे पहले कोई भी एटम कंबाइन क्यों करता है। सर अपना ऑक्टेट पूरा करने लिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए, आउटर मोस्ट में 8 पूरे करने के लिए। आगे जाके ऑक्टेट रूल की हाँ जी। लिमिटेशन भी आएंगी कि दो दो पूरे भी होते हैं। ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने से क्या हो जाती है, एनर्जी मिनिमम, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझ आएगी, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन रखाने को बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझ आए। यस सर। ठीक है, और ये इसका एग्जांपल्स हो गई। सिग्निफिकेंस, इसका फायदा क्या हुआ लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। सर एक वैलेंसी पता चलती है, ठीक चार्ज। है, वैलेंसी चार्ज, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नेक्स्ट, तीन एक तरह के और था बॉन्ड्स कौन पॉइंट कौन तीन से, बताइए आयनिक, सर। कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। आयनिक कौन सा होता है। कि जितना कम है बस अगर एक कम है तो दूसरे ने दे दिया और अपना उसने पूरा हाँ, मतलब। एक लूज करेगा, और दूसरा गेन करेगा। और दूसरा गेन करेगा। ठीक और है, कोवलेंट में 50-50 होता है। ठीक है, दोनों शेयरिंग करते हैं। और कोऑर्डिनेट में दोनों इलेक्ट्रॉन एक बंदा उसका। देगा। ठीक है, आयनिक में तो हाँ। चलो जो मेटल था वो एक एक बंदा एक इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेट में दोनों इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग। शेयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बॉन्ड यस देखिए सर। अपन ने। आयनिक बॉन्ड देखा, आयनिक एनर्जी जो, सॉरी, आयनिक एनर्जी क्या होती है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंबाइन करता है एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का नाम क्या होता है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी। बिल्कुल। सर लैटिस एनर्जी को एक बार डिफाइन कर देना मुझे। श्योर श्योर मैम, जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंबाइन करेगा, तो कंबाइन करने के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी सीक्रेट होगी। ठीक है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज लेटिस एनर्जी। लेटिस बोलते हैं ना, मेरी बात सुनो, एक आप घर में फ्रेश रैप यूज करते हो ना। ठीक है, फ्रेश रैप, सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल, जो भी, तो हाँ जी। वो बेसिकली एक एल्यूमिनियम का लेटिस ही है, एल्यूमिनियम की लंबी लंबी लेयर ही है। लेटिस मतलब एक लंबी कतार, गुच्छा। घर में दीवारों पर ठीक। दीवार नहीं है ना, दीवार ईंटों की लेटिस है। लेटिस मतलब होता है कि उसको एक लॉन्ग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लंबा लंबा लगा दे। ठीक है, सेम सीरीज, सेम सेम। ठीक है, तो एक लैटिस ठीक है। बनेगा, Na और Cl कंबाइन करेगा तो एनर्जी निकालेगा, वो लैटिस एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन ज्यादा हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी भी ज्यादा हो जाएगी। लैटिस एंथैल्पी के पॉइंट्स देखे, साइज स्मॉल हो, चार्ज ज्यादा हो। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट इनकी क्या होती है मैम। सर जो सॉलिड स्टेट में बताया था सॉलिड आपने। स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होगा। हाई होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, पानी में घुल जाते हैं। पोलर और नॉन पोलर का बताया था इसमें ना, आपने। नॉन पोलर में नहीं सॉल्युबल घुलेंगे, होता है। पोलर में घुलेंगे, नॉन पोलर में नहीं हाँ घुलते। पोलर। हाँ, ये पोलर में घुलेंगे, नॉन पोलर में नहीं। बिजली कनेक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। हाँ जी मैम। सर सर वाटर का पूछ रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब नहीं, वैसे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी करवाते हैं कि नहीं करवाते, करवाते हैं, तभी करवाएंगे आयनिक कंपाउंड। जब ये मोल्टन स्टेट में होंगे या हमारे पास पानी में घुले होंगे। पड़ा पड़ा नमक, यहाँ पे घर में नमक पड़ा है बहुत सारा। ठीक है, तो उसके ऊपर दो तारे लगा दो, एक इधर तार है, एक इधर तार है, सेंटर में अपन कहते हैं किरण को दोनों तारे पकड़ा दें, कुछ नहीं होने वाला। बट अगर पानी आ गया तो काम खराब हो जाना है। हाँ, हाँ जी किरण, ठीक। बताओ ठीक है ऐसे। यस सर। अगर बीच में पानी के दो बूंदें गिर गई
दिक्कत आ जानी है। ठीक है, तो पहली प्रेजेंटेशन खत्म, अपनी पहली खत्म होगी। अब मेरे को 1 मिनट देंगे, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पूरा नहीं है, बस 1 मिनट में अभी मेरे पास सामने ही पड़ी है। 1 मिनट के अंदर अंदर मैं स्कैन करके रख रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट बस, ठीक है क्लास में रहिए। ठीक, ये लो, हो गया हमारा सब। क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर है ना। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा नई प्रेजेंटेशन है। हाँ जी, तो मैंने 7 पेज कर गए हैं, है ना। और भी हाँ काफी जी फिर। अच्छे से कर लेंगे अपन आज। आयनिक रिएक्शन तक हो गया। अब अपन कोवलेंट कंपाउंड की बात कर, बड़े सौखे हैं, कुछ नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड जो सर शेयरिंग से हो जाते हैं, जैसे एच है, एक इलेक्ट्रॉन इसने प्रोवाइड करा, किसने करा, शेयरिंग होगी। सीएल में भी इन्होंने अपने अपने, ठीक है, बेसिकली 7 7 इलेक्ट्रॉन थे, किसने प्रोवाइड करा है, किसने करा, शेयरिंग होगी। HCl में भी सेम, एक एच ने एक सीएल ने, शेयरिंग हो रही है। बड़े सिंपल सिंपल है, किरण समझ आ रहे हैं। यस सर। क्योंकि लिविस डॉट स्ट्रक्चर अपने पेपर में बनाने नहीं आने, अपन को बस थोड़े पता हो। ठीक है, इसमें H2 में देख लो, एक H में ये वाले एक और ये दो दो बॉन्ड पेयर, और ये 1 और 2 ये लोन पेयर हो गए। अमोनिया में नाइट्रोजन ने अपने बेसिकली 5 थे, ये एक लोन पेयर रख लिया, 1 2 3 शेयर कर दिए। हाइड्रोजन ने अपना 1 2 3, हाइड्रोजन ने अपनी बॉन्डिंग क्रिएट कर दी। सिमिलरली देखो CCl4 में, O2 में, O2 की ये नहीं करनी कुछ, ये करनी है। ठीक है,
ये CO2, बड़ी सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर हैं जो अपन छोटी क्लासेस में काफी पढ़ी हुई, इन्हें जरूर देखना जरूर है, मैंने पेपर में कोई बनाने नहीं आनी बट फिर भी पता है। लिमिटेशन ठीक है सर। स्लैश एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की जो एक्सेप्शंस क्या है, पहली बात हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मैंने बोला था ये एक्सेप्शन आएगी आएगी। अब हाइड्रोजन सर एक एक ही शेयर कर सकता है, तो इसके बेसिकली इसको भी लग रहा है इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ये वाला, और ये भी इसको भी लग रहा है इसके 2 हो गए, पहला और दूसरा, तो दोनों को लग रहा है दोनों के 2-2 हो गए, है ना। बट ऑक्टेट रूल तो 8 की बात करता था, है ना, तो ये ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन हो गई है। तो नो डाउट ये डुप्लेट है, ये अपना डुप्लेट पूरा करता है, बट ऑक्टेट रूल ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। LiCl, लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 है ना, Cl के भी अपने पास आउटर मोस्ट में 7 है, तो ये बेसिकली लिथियम भी एक शेयर करेगा, Cl भी एक शेयर करेगा, तो लिथियम के पास तो 2 ही हुए, और क्लोरीन के पास 8, तो लिथियम के 2 है, लिथियम कहाँ से स्टेबल हो गया। B2 है, BeH2 में भी अगर आप BH3 की बात करें, इसमें वो बोरोन के आउटर मोस्ट बना के देखना 6 बनेंगे, ये भी स्टेबल नहीं है। BF3, ठीक है, इसमें भी स्टेबल नहीं है। किरण अभी लिंक दोबारा आएगा, दोबारा ज्वाइन करिएगा, ठीक है, पहले मीटिंग ओवर हो जाएगी अभी ठीक है 40 सर। मिनट से। हाँ, दोबारा आ जाएगा, उसको फिर ज्वाइन करिएगा। तो ये BH3 हो गया, इसमें जब चेक करोगे ना तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 4 ही बनेंगे, क्योंकि 2 ये शेयर करेगा, 2 हाइड्रोजन से आगे, इसमें भी 3 ये शेयर करेगा, 3 ये आ जाएंगे, इसके 6 हो जाएंगे। इसमें BF3 ये भी 3 करेगा, ये 3 करेगा, इसके भी 6 हो जाएंगे। सर 8 तो हुए ही नहीं, अपन को पता है अभी शेयरिंग से डबल ही होंगे। पर ठीक है, 75 रुपए मैंने डाले, 75 अपने पास कहते हैं किरण डालेगी, 150 हो गया, वो भी दिखाएंगे। पहले डबल के पहले आप देखा ना, डबल के बाद मैं देखूंगा। तो ये अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था, बट डबल होंगे, 8 तो हुए ही नहीं, 8 नहीं हुए, तो गलती होगी सर, नहीं होगा एक्सपेंडेड ऑक्टेट, जैसे PF5 फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 है जी, 5 शेयर करेगा फ्लोरीन के साथ, 5 और 5 10, हाँ 10 हो गए। सल्फर